Hello, friends. How are you? Hope you all are doing good. Welcome back to Progress with Commerce. I am Neha, your friend, guide, and motivator. So, as I have promised to you in last video, here I am to introduce you all with CA Foundation. In this particular video, I am going to cover these 5 topics, which are how to get registered in CA course, that is your eligibility to get registered. Second, timelines for registration in CA Foundation. Third, registration procedure and your requirements. Fourth, the fee structure, the very important part to be the part of this course. And fifth is last, exam form and papers of CA Foundation. So, before knowing about CA Foundation, let me give a brief about CA course. Basically, chartered accountancy is one of the prominent courses in commerce field. Every country has a statutory body who gives you this degree. In India, India also has a statutory body who gives you this degree, which is the Institute of Chartered Accountants of India, which is ICAI. Alright? This is the mother body of all the chartered accountants. In India, only this institute can give you the CA degree. Okay? So, to get this degree, a person has to pass 3 levels of examination. First one is CA Foundation, second, CA Intermediate, and third, CA Final. This video is based to how to get entry through CA Foundation. To get entry in CA Foundation, you have 2 ways. First one is through CA Foundation CPT. पहले CPT बोलते थे, अब CA Foundation ही बोलते हैं. Second route is direct entry route. We will discuss this direct entry route in our upcoming videos. In this particular video, I am going to discuss only CA Foundation route. So, first of all, what you need to do is registration with ICI. I mean to say, you need to get yourself registered as a student in by CA Institute, which is the Institute of Chartered Accountants of India. ये रजिस्ट्रेशन आप 12th पास्ड आउट होके भी करा सकते हैं, आप 12th में अपीयर होकर भी करा सकते हैं. अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, आपने 12th के एग्ज़ाम दे दिए हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया, फिर भी आप CA इंस्टीट्यूट में एज अ स्टूडेंट अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. The third way is you can also register yourself after passing out your 10th class. Yes guys, you heard it right. You can also get yourself registered अगर आपने 10th pass out कर लिया है तो. So, first of all, I'll talk about this 12th वाला provision and secondly, I will talk about 10th passed. Okay? So, if you have appear in 12th examination, आपने 12th का एग्ज़ाम दे दिया है, आपका रिजल्ट अवेटेड है या फिर आप 12th पास्ड आउट है, तो आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो, आप CA फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो. बट CA इंटरमीडिएट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 12th भी पास्ड आउट होना ज़रूरी है एंड CA फाउंडेशन भी पास्ड आउट होना ज़रूरी है. आप अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, आपको 12th में पास आउट करना ज़रूरी है, आप CA CPT दे सकते हैं, CA फाउंडेशन दे सकते हैं, बट इंटरमीडिएट में आपको एडमिशन कराने के लिए दोनों जगह पास्ड आउट होना ज़रूरी है. ओके. द थर्ड वे जो मैंने आपको बताया, विच इज़ 10th पास्ड. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 10th पास आउट प्रोविज़न. आपने अपना 10th पास आउट कर लिया तो आप इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. उसके बाद प्रोसीजर ये रहता है कि आपको 12th के एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा आफ्टर पासिंग 10th एंड उसके बाद आप CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं. बट सिमिलरली जैसे मैंने पहले बताया कि आपको इंटरमीडिएट में रजिस्टर करवाने के लिए दोनों में पास आउट होना ज़रूरी है. तो फ्रैंकली स्पीकिंग इस वे में उन्हें ही जाना चाहिए हु एवर गोल्स इज़ वेरी क्लियर, मतलब कि CA ही करना है. बिकॉज जितना मैं समझती हूँ स्टूडेंट्स को, आफ्टर 10th स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या ऑप्ट करना चाहिए, क्या नहीं ऑप्ट करना चाहिए इस चीज़ को लेकर. I hope you guys can also understand this. Please hit the like button if you also think the same. Okay.
सो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप 12th रिजल्ट आने के बाद एज सून एज पॉसिबल सीए फाउंडेशन में रजिस्टर करवा लीजिए। एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है और आपकी फाउंडेशन की टाइमलाइंस निकल रही हैं, मैं टाइमलाइंस आपको अभी आगे चल के बताऊंगी वीडियोस में कि टाइमलाइंस क्या रहती हैं, और अगर आपकी टाइमलाइंस निकल रही हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लो एंड देन आप 12th के एग्जाम में आप जब पास आउट हो जाओगे देन आप फाउंडेशन के एग्जाम में अपीयर होकर आप फाउंडेशन भी पास आउट कर लेंगे। एंड देन उसके बाद जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो आपको 12th पास प्लस फाउंडेशन पास दोनों का होना मैंडेटरी है। ओके, एंड देन अगर आप सीए फाउंडेशन पास आउट कर लेते हैं और आपका 12th भी पास्ड है तो आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर करवा सकते हैं, अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर इफ़ यू वांट कि मैं फुल जर्नी टू बिकम अ सीए से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी सो ओवरवेल्म्ड बाय सीइंग योर रिस्पॉन्स। ओके, my next point is, what are the timelines to get yourself registered in CA Foundation? CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम, इवन CA फाइनल, CA इंटरमीडिएट, CA फाउंडेशन, तीनों ही लेवल के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं। फर्स्ट इज़ योर मई अटेम्प्ट एंड सेकंड इज़ योर नवंबर अटेम्प्ट। मई अटेम्प्ट कभी कभी जून में भी पोस्टपोन हो जाता है, दोनों में से किसी भी एक मंथ में ये हो जाता है। नवंबर एंड दिसंबर इन दोनों में भी किसी एक मंथ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आपको अगर मई अटेम्प्ट में देना है पेपर तो या फिर जून अटेम्प्ट में पेपर देना है, दोनों में से जिस भी अटेम्प्ट में, जिस भी मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, अगर आपको उसमें एग्ज़ाम देना है तो आपको बिफोर 1 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आपको नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम देना है तो आपको बिफोर 1 जुलाई आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। गाइज प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट, आपको बिफोर 1 जनवरी एंड बिफोर 1 जुलाई ही रजिस्टर करवाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मई में एग्ज़ाम देंगे और आप 1 जनवरी को रजिस्टर करवाने शुरू करेंगे, यू कैन नॉट गिव एग्ज़ाम। आप मई में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आप बिफोर, यहाँ पे वर्ड जो है वो बिफोर है, बहुत फ़र्क पड़ता है ऑन एंड बिफोर पर। आपको इट मीन्स, अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो आपको मई वाले केस में 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एंड नवंबर वाले केस में 30th जून तक आपको रजिस्टर करवाना होगा फॉर सीए फाउंडेशन टू अपीयर इन दीज अटेम्प्ट्स। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो। लेट्स सपोज आप इस ईयर में आपको अटेम्प्ट देना है, लेट्स सपोज नवंबर 22। ओके, आपका अटेम्प्ट आप देना चाहते हो, नवंबर 22 अटेम्प्ट आपको देना है। तो व्हाट आई मेंट बाय दिस कि आपको इस अटेम्प्ट में जाने के लिए आपको सीए फाउंडेशन में रजिस्टर जो करवाना होगा वो 30th जून तक करवाना होगा। ओके, इस डेट को अगर आप करवाएंगे तो यू कैन गिव अटेम्प्ट इन नवंबर/दिसंबर। ओके, वट जिसमें भी एग्जाम कंडक्ट कराएगा इंस्टीट्यूट, उस अटेम्प्ट में आप एग्जाम दे सकते हैं। कूल। ओके, आप अगर 1 जुलाई को कराओगे तो आपको नवंबर अटेम्प्ट नहीं देने मिलेगा, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में शिफ्ट कर दिए जाओगे विच इज़ मई 23, राइट। सो प्लीज़ बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दीज टाइमलाइंस। आपको ये टाइमलाइंस बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी बिकॉज आपको ये अटेम्प्ट्स में देने के लिए इन टाइमलाइंस को फॉलो करना इज़ वेरी नेसेसरी। ओके ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट our third point, which is registration procedure and the requirements. Okay, सिंपल सी बात है, रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इंस्टीट्यूट ही जाना पड़ेगा। ऐसा पहले होता था, अब नहीं होता। अब एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। सो इंस्टीट्यूट ने भी अपना SSP पोर्टल बनाया हुआ है विच इज़ नेम्ड इज सेंट्रलाइज्ड सेल्फ सर्विस पोर्टल, शॉर्ट में SSP पोर्टल भी बोल देते हैं। इस पर आकर आपको एंट्री लेवल का फॉर्म है वो फिल करना होगा और उस फॉर्म को फिल करने के लिए व्हाट यू विल रिक्वायर 3 थिंग्स। फर्स्ट वन, एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए आपके पास, मोबाइल नंबर एंड सॉफ्ट कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। सो दीज 3 आर द थिंग्स विच यू विल रिक्वायर टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड इन CA फाउंडेशन। ओके,
जब आप अप्लाई कर देंगे, ये फॉर्म फिल कर देंगे, उसके विद इन 3 to 4 डेज में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे जाएंगे और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी ग्रांटेड। आपको इंस्टीट्यूट के थ्रू मेल आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन इज डन एंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस लाइक NRO CRO किसी से भी स्टार्ट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द रीजन विच यू हैव अप्लाइड। सो मैक्सिमम इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 3 to 4 डेज लगते हैं। 3 to 4 डेज में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर फोर्थ टॉपिक। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। CA फाउंडेशन की फीस स्ट्रक्चर आपको 2 वे में देखने को मिल सकती है। फर्स्ट वन इज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, जो आप INR में पे करेंगे, रुपीज में पे करेंगे फीस। एंड सेकेंड थिंग इज फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, जो आपको US डॉलर्स में पे करेंगे फीस, उनके लिए। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो देनी होती है वो 9,000 रुपीज देनी होती है इन INR। एंड फॉर इन US डॉलर्स, अगर आप फॉरेन स्टूडेंट है तो US डॉलर्स में आपको 700 US डॉलर्स आपको पे करने होंगे फॉर गेट योर सेल्फ द रजिस्टर्ड। ओके, एक पॉइंट और होता है कि कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें आपका फुल कोर्स एंड एवरीथिंग विल बी रिटन, सब कुछ वहाँ लिखा होता है। सो आपको वो 200 की कॉस्ट देगा इफ यू वांट टू परचेज। इफ यू डू नॉट, इट इज ऑप्शनल। यू डू नॉट नीड टू मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। आपको लेना है तो आप 200 एक्स्ट्रा पे कीजिए, 9,200 पे कीजिए। एंड अगर आपको नहीं लेना है तो जस्ट go with 9,000. Okay, so this is the fee structure. Let me be very clear, this is the fees to institute, the ICAI के लिए ये फीस है। this does not include your coaching fees। आपको कोचिंग अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा, which is separate from this amount. Okay, this amount is only for get yourself registered with the institute in CA Foundation, right? Okay, cool. Now let's talk about the very crucial part, which is exams. Okay, so for appearing in any attempt, for May attempt or for November attempt, whichever you want, you have to fill an exam form. हर attempt से around 1.5 month पहले एग्ज़ाम फॉर्म्स आते हैं, वो एग्ज़ाम फॉर्म आपको फिल करने होते हैं। एंड जो स्टूडेंट उन एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करेगा वो ही आने वाले एग्जाम्स में अपीयर हो सकता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आप अभी अटेम्प्ट नहीं देना चाहते, लेट्स सपोज आपकी तैयारी नहीं होती है, वैसे आई विल नेवर सजेस्ट एनी स्टूडेंट कि वो अटेम्प्ट छोड़ें, बिकॉज अटेम्प्ट लीव करना इज लाइक आप लड़ने नहीं गए एंड आपने तलवार छोड़ दी, ऐसा तो विच इज़ नॉट गुड, राइट? सो you need to fill the exam form and you will surely go for attempting the at least question paper, आपको इससे एटलीस्ट कुछ नहीं मिलता तो एक एक्सपीरियंस तो मिल ही जाता है, एंड एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो एक्सपीरियंसेस शुड बी देयर। ओके, एंड अगर आप इन केस आप अनलकीली अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाते हैं तो यू विल गेट एक्सपीरियंस। ओके, सो फिल एग्जाम फॉर्म फॉर दैट, फॉर अपीयरिंग इन दैट एग्जाम। अच्छा, इफ़ यू हैव गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, तो उसके बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे। आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे तो ही आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, अदरवाइज वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, आप उस अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप उसमें नहीं जा सकते। ओके, सो ये एग्ज़ाम फॉर्म इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे होस्ट कर देता है बाय अनाउंसमेंट्स कि एग्ज़ाम फॉर्म्स आ गए हैं, उनकी डेडलाइंस जो भी रहेंगी वो इंस्टीट्यूट बता देता है। एंड आप कहाँ किस वेबसाइट पे जाकर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे, वो ये वेबसाइट है www.icaiexam.icai.org। ओके, आप अपने NRO के थ्रू यहाँ लॉगिन ID बना सकते हैं, एंड उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे एग्ज़ाम फॉर्म, एंड देन यू विल अपीयर इन एग्जाम्स। ओके, सो दिस शुड बी आई थिंक आवर लास्ट टॉपिक, द एग्जाम्स। CA फाउंडेशन में इन टोटल 4 पेपर्स होते हैं एंड ईच पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। ओके, आपका हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा। इन टोटल आपके 400 नंबर में से मार्क्स आएंगे। ठीक है, फर्स्ट 2 एग्जाम्स आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं एंड द लास्ट 2 एग्जाम्स आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान देना कि सब्जेक्टिव एग्जाम में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप जितना अटेम्प्ट करके आएंगे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आपने गलत भी लिखा है तो भी। बट ऑब्जेक्टिव टाइप
जो एग्ज़ाम्स हैं, आपके जो पेपर हैं, उन पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इन एग्ज़ाम्स में गलत आंसर मार्क करने से बेटर है आप छोड़ के आ जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन तो जस्ट लीव इट। आप डाउटी में भी मत लगाना, बिकॉज डाउट में लगाते हो ना तो आप अपना लॉस करते हो। आपके जो आने वाले मार्क्स होते हैं, जो पॉजिटिव मार्क्स होते हैं, उसमें से ये नेगेटिव मार्क इन केस अगर गलत हो गया तो आपके पॉजिटिव मार्क्स में से कट जाएंगे मार्क्स, ठीक है। तो आपको पासिंग क्राइटेरिया भी है, तो को मीट करने के लिए इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा कि आपकी सब्जेक्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो मर्जी है लिख के आओ, जो आप पढ़ के गए हो, जो आपको याद आ रहा है वो आप लिखो वहाँ पर। बट ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा रोकना पड़ता है कि तुक्का ना लगाएं। जो आता है, अगर आप यू आर 100% कॉन्फिडेंट देन जस्ट टिक इट। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आई थिंक लीव इट, वो ज़्यादा बेटर है। कुछ गंवाने से अच्छा है उसे ना अटेम्प्ट करो, वो ज़्यादा अच्छा है ना। ओके, सो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में आई गेस आप सबको डिफरेंस पता होगा। सब्जेक्टिव में आप लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर काइंड ऑफ होता है, जैसे आप एग्जाम अभी तक देते आए हैं 12th तक, वैसा ही होता है। एंड ऑब्जेक्टिव इज योर एमसीक्यू। 4 ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा, दैट इज योर एमसीक्यू, ठीक है। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव। दोनों ही सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सारे पेपर्स 100 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 400 मार्क्स का आपका टोटल बनता है। ओके, आपका जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, विच इज़ ऑफ 100 मार्क्स। आपका जो सेकेंड पेपर होता है वो होता है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन ए एंड सेकेंड सेक्शन इज सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए आपका 60 मार्क्स का होता है एंड सेक्शन बी आपका 40 मार्क्स का होता है। इन टोटल आपके बन गए 100 मार्क्स, राइट। पेपर 3 आपका जो होता है वो होता है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ये फुल पेपर 100 मार्क्स का होता है। इसमें इंटरनली थोड़ी सी बाइफर्केशन है। आपका जो बिजनेस मैथमेटिक्स होता है वो 40 मार्क्स का आता है, आपका जो लॉजिकल रीजनिंग होता है वो 20 मार्क्स का आता है, एंड जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो अगेन 40 मार्क्स का आता है, ठीक है। योर पेपर 4 इज ऑल्सो इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज पार्ट 1 इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपका 60 मार्क्स का है। पार्ट 2 इज बिजनेस एंड कमर्शियल लैंग्वेज, ये आपका 40 मार्क्स का है। ये मैंने आपको एक ऊपर से पेपर की थोड़ा सा नाम बता दिया कि ये पेपर्स होंगे, सारे 100 मार्क्स के होंगे। एंड इनका ना टाइमिंग का भी डिफरेंस होता है। इनमें आपको आई थिंक 3 आवर्स मिलते हैं एंड इनमें आपको आई थिंक 2 आवर्स मिलते हैं। ओके, फॉर पासिंग द एग्जाम, द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट of this video. For passing the exam, you will need at least 40% marks in each paper and 50% marks in aggregate of all the papers. Please mind this word. This word is and. I mean, आपको ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, तभी जाकर आप पास आउट हो पाएंगे। मैं अभी आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बता दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। आपको हर पेपर में एटलीस्ट 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, एंड आपको इन टोटल जो इन चारों का जो भी आप मार्क्स लाएंगे उनके जो टोटल आएगा उसमें आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स, दैट इज 200 मार्क्स मिनिमम टोटल में होने चाहिए, और हर एक एग्जाम में 40 मार्क्स होने चाहिए। अच्छा गाइज, इफ़ यू वांट कि मैं इन चारों पेपर का थॉरो वीडियो लेकर आऊँ कि आपको क्या सिलेबस रहता है इन चारों में, तो प्लीज़ लीव अ कमेंट। आई विल मेक श्योर कि मैं जल्द से जल्द वो वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ ये 40% 50% का क्या लॉजिक है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद सम एग्जाम्पल्स। ओके, आपके 4 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ठीक है। लेट्स सपोज these are all imaginary figures, please do not relate with it. Let's suppose in case 1 you get 50 marks in paper 1, cool. In paper 2 you get 50 marks. In paper 3 you get 50 marks, luckily. But in paper 4 you got 49 marks. What would be your total? Your total will be 199. हमारी 2 कंडीशंस क्या थी? फर्स्ट 40% in each paper and second 50% in aggregate, right? Okay, तो अब वी विल सी कि दोनों कंडीशन मैट हो रही है या नहीं हो रही।
40% इन ईच पेपर तो हो रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट 50% आपका एग्रीगेट में नहीं हुआ, आपके 199 आए हैं, नॉट 200. सो इसलिए अनफॉर्चुनेटली आपका जो रिजल्ट है वो फेल आएगा. ठीक है. नाउ केस 2, अगर आपके लेट्स सपोज फर्स्ट एग्जाम में 55 आते हैं, सेकंड एग्जाम में 59 आते हैं, थर्ड एग्जाम में 39 आते हैं, एंड लेट्स सपोज फोर्थ एग्जाम में आपके 59 आ जाते हैं. ओके, योर टोटल विल बी 212. ठीक है, क्राइटेरिया मीट करते हैं. 50% इन एग्रीगेट हो गया जी, हो गया. 400 में से 200 आ गए, हो गया. ठीक है. 40% इन ईच पेपर, इसमें आए जी, हाँ आए. इसमें आए 40 तो आ गए ना, 40 से ऊपर ही है. इसमें आए नो. इसमें आए हाँ जी, आ गए. आपके 3 पेपर्स में 40% से ऊपर है, 40 मार्क्स से ऊपर है, बट आपका टोटल भी बन रहा है, लेकिन इस पेपर की वजह से आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा. यू विल गेट फेल. आप यहाँ पर इसकी वजह से गए और यहाँ पर एक पेपर की वजह से चले गए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस 3. आपके फर्स्ट एग्जाम में लेट्स सपोज आते हैं 55, पेपर 2 में भी आ जाते हैं 55, एंड लकीली पेपर 3 में भी आ जाते हैं 40, एंड पेपर 4 में आते हैं लेट्स सपोज 50. ओके, योर टोटल इज 200. अब चेक करते हैं क्राइटेरिया. क्या आपका 40% इन ईच पेपर 40 मार्क्स आ गए? हाँ जी आ गए, हाँ जी आ गए, आ गए, आ गए. क्या आपका एग्रीगेट 50 बन गया? हाँ जी बन गया. 50 इन द सेंस 50%, 400 का 50% होता है 200. तो जी बन गया. कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गेट पास्ड. नाउ इट्स पार्टी टाइम. कॉन्ग्रेट गाइज, प्लीज़ ट्रस्ट मी, पास होने की खुशी बहुत अनदर लेवल पे होती है, एंड ये वही फील कर सकते हैं जिसने ये पास वर्ड देखा हो अपने रिजल्ट में. Okay, so this is all about introduction to CA Foundation. Please leave comments if you want कि मैं full journey to become a CA लेकर आऊँ, and if you want कि मैं पेपर each पेपर का जो आपके चारों पेपर्स होते हैं इनका full syllabus आपको explain करूँ, तो leave a comment. I'll make sure I'll make the video as soon as possible. And if you like the video, please subscribe to my channel, hit the like button, and अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो leave a comment. Thank you, bye bye, take care and stay safe. Thanks for watching.